اب بات ہوگی تھوڑا آرٹ کے حوالے سے. آرٹ انسان کے ذہن کو ریلیکس بھی کرتا ہے، لوگوں میں خوبصورتی دکھانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چیزوں کو کس طرح سے خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی آرٹسٹ اور گارڈنر موجود ہیں، ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عابدہ علی واحدی صاحبہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیں انسان کا پتہ چل جاتا ہے، the way you are carrying yourself، پیارا سا آؤٹ فٹ پہنا ہوا اور خود بھی پیاری لگ رہی اور چیزوں کو بھی پیارا کر دیتی ہیں. تو یہ ایک آرٹ جو ہوتا ہے نا، آئی مسٹ سے کہ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. بیوٹیفل تھنگ. ہاں دیکھیں، میں تو یہ کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو جمال خالی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ظاہری حسن جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، مطلب وہ جمال جو ہے کائنات میں ہے، خوبصورتی ہے، ایک ترتیب ہے. یہ سب چیزیں مل کے جو ہیں وہ انسان کو خوبصورت بناتی ہیں اور وہ کرتی ہیں. جی، اور یہ بھی میں کہتی ہوں گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آرٹ ورک کو اس طرح لے کر چل سکتا ہے. اور یہ صلاحیت ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے. بالکل. آپ کو کیسے کب پتہ چلا کہ آپ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں؟ اچھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے آرٹ کا کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے آرٹ کی. اچھا، کچھ نہیں. اور میں نے کراچی کے بہت بہترین اسکول میں کوئی 10-12 سال پڑھایا ہے، ایز اے آرٹ ٹیچر رہی ہوں. جب میں گئی، کیونکہ میرا جو کالج تھا ایبٹ آباد کا، ہری پور ایبٹ آباد کا، تو وہاں پہ آرٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا ہمارا. تو وہ پھر میں نے جغرفی پڑھ لی، یہ پڑھ لیا. لیکن ایک اندر ایک بچپن سے میرا آرٹ، وہ آپ کے بچپن سے آپ پڑھتے ہیں، آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا، آرٹسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے آپ کا. تو بس پھر یہ کہ وہ میں تھا، مجھے شوق تو تھا کرنے کا. پھر جب میں اسکول گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ڈگریز دکھائیے آپ اپنے. میں کہا ڈگری تو کوئی بھی نہیں، آپ میرے کام دیکھ لیں. پھر جو کام تھا تو وہ مطلب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ او لیولس برانچ کو میں نے پڑھایا الحمدللہ، بہت اچھی طریقے سے 10-12 سال پڑھائے. اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ مجھے کچھ اپنا کام کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اپنے پاکستان کی چیزیں، جو ہماری پوٹری ہے، جو کلے ورک جو ہوتا ہے ہمارا یہ، اور پھر جو ہمارے ٹرک آرٹ ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، بڑی اچھی اس کی ایک ہسٹری ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی. تو اس کو پھر میں نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ. اور آپ نے کلے ورک پہ، پوٹری پہ آپ نے جو ہے پوٹری پہ میں اب ہر چیز پہ، مطلب میرا کینوس جو ہے وہ ہر چیز ہے، بیگز ہیں، والز ہیں، ڈورز ہیں، کراکری ہے، یوٹینسلز ہیں، جوتے ہیں، جو بھی چیز میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو اپنا کینوس بنا لیتی ہوں. آپ کا یہ ہوتا ہے کہ عابدہ جی جو ہے وہ کرتی ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹرک آرٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مطلب وہ گولڈ میں کنورٹ نہیں، لیکن وہ ٹرک آرٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ گولڈ میں، لیکن آپ کا ٹرک آرٹ میں. تو ماشاء اللہ آپ کا جو ہے اتنا اچھا ہی آپ ایک کام کر رہی ہیں، کیونکہ واقعی ٹرک آرٹ کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی چیز کو آپ کو لائف دینا بھی ضرور ہے. یہ کلچر کا حصہ ہے. بالکل جی، بیوٹیفل کلچر. پتہ نہیں اسے کون لے کر آیا ہوگا، میں تو بھی سوچ رہی ہوں. کبھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا اس کے تو بارے بتائیں نا ذرا یہ ٹرک ہاں آرٹ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے جو اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، مطلب، اور یہ پاکستان کا یہ مطلب آرٹ ہے، اور یہ کسی پراپر پاکستان کا اور کسی ولیج کے مطلب اس سے یہ توسط سے یہ چیزیں ہونا شروع ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ٹرکوں پہ کرنا شروع کیا. اب تو یہاں تک ہے کہ لوگ انگلینڈ میں جو ہیں بسیں جو ہیں وہ ٹرک آرٹ کی مطلب چل رہی ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، بنا رہی ہیں، چل رہی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا سا بڑا وائبرنٹ کلرز ہوتے ہیں. ہم اسے بچپن میں نا بڑا پینڈو سمجھتے تھے، پینڈو سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ کیا بنا کے. لیکن ظاہر پتہ چھوٹے تھے، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ڈفرنٹ انداز میں دیکھ رہے ہوتے تھے. لیکن آج یہی ہمیں لگتا ہے کہ ہر جگہ ہونا چاہیے، بیکاز دس از پارٹ اور اینڈ از بیوٹیفل. بیوٹیفل ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاکستان کی چیزوں کو پروموٹ کروں نا. ہم اب پوٹری اٹھاتی ہوں تو میں اپنے ملک کی اٹھاتی ہوں. ہمارے ملک کے اتنے خوبصورت برتن بنتے ہیں. ملتان کا آپ دیکھ لیں، ملتان کے آپ ہانڈیز دیکھیں. ابھی میری کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی وہ تھی دعوت تھی، تو اس میں میری ساری ہانڈیاں میری انہوں نے پینٹ کروا کے مجھ سے منگوائیں. انہوں نے کھانا اس پہ سرو کیا. جی الحمدللہ. پراپر بزنس ہے. پراپر بزنس. میں یہی چاہتی ہوں، میرا جو بھی میں نے کام کیا نا اس کو میں نے اپنا بزنس بنایا. سکھاتی ہوں بچوں کو یا نہیں؟ میں سکھاتی ہوں، میں ورک شاپ لیتی ہوں. میں ورک شاپ لیتی ہوں، اور میں والنٹیئر ورک شاپ لیتی ہوں. میں کسی بھی اسلام آباد چلی گئی، کالج میں چلی گئی، میں نے آپ کو آرٹ سکھانا ہے. ضروری نہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک قابلیت دی ہے، تو یہ کائنات کا اصول ہے کہ جب آپ اس چیز کو بانٹتے ہیں نا تو وہ چیز گرو کرتی ہے. وہ چیز گرو کرتی ہے. اور بانٹنے کے اس سے ہم تو دیکھیں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بڑا چھوٹا سا ایک ہمارے پاس چیز آتی ہے. لیکن اللہ کے راہ میں جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اپنی چیز کو، جو اللہ نے ہنر دیا ہے، تعلیم دی ہے، جو بھی چیز آپ کو دی ہے، آپ کو ایجوکیشن ہے آپ کے پاس، تو جب آپ اس کو پروموٹ جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ
ग्रो करती है, वो ग्रो चीज़ कर ग्रो रही होती है। करती नहीं है। वाक़ई जी आपका ये काम भी एक तो बहुत अच्छा है, जी दूसरा ये कि आप पाकिस्तान के इस कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। बिल्कुल जी। क्या-क्या मुश्किलात पेश आती हैं काम करते वक़्त? मैं नहीं समझती कोई नहीं, मुश्किल कोई नहीं पेश आती नहीं, है। और क्योंकि ये बहुत, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको वेपन्स की अच्छा, ज़रूरत नहीं सारा होती। खुद काम करती हैं या आपने अपने साथ वर्कर्स भी नहीं, रखे हुए मैं हैं? अपना काम खुद करती हूँ, मुझसे मैं सिखाती ज़रूर हूँ। उनसे हाँ, मैं हाँ। कहती हूँ कि आप, जैसे मैं अपना एक ब्रांड चलाती हूँ, आबिदाज़ आर्ट के, उससे मेरा एक ब्रांड चलता है, जी, जी। तो वो मैं चलाती हूँ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जो है ना अपनी जगह खुद पैदा करें, अच्छा आप मतलब सिखा दें। उस दिन मैं एक बात कह रही थी ना, जी, मैं जी, कह रही थी कि जिन भी ख़वातीन के पास अल्लाह ताला ने बहुत असर और रसूख उनको दिया हुआ है, जी। उनको बहुत ज़्यादा ताकत दी है अल्लाह ने हुँ। उनको मॉनेटरी वाइज। मैं कहती हूँ जाकर ना बाहर के मुल्क से जाके ना अपनी मॉनेटरी वैल्यू को किसी डिज़ाइनर बैग से मत तोल कर नहीं, दिखाएं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। कहती हूँ जिस तरह आप हैं, जी। आपने अपना एक काम दिखाया, हुँ, आप अपना कहते हो कोई अपना ब्रांड नहीं बना, अपनी हुँ, सलाहियत को सामने लेकर आए, बिल्कुल। अपने आप को मनवाए रादर देन आप सिग्नेचर बन रहे किसी और के नाम का। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो नहीं सबको आपका ये बहुत अच्छा, आप तो मोटिवेशन है सबके लिए, जी, नहीं, खवातीन के नहीं, लिए बिल्कुल। और मोटिवेशन आप है। यकीन जानें कि मेहनत है इसके अंदर। आप ये नहीं कह हाँ, सकते कि मैं, मतलब बाज़ औक़ात मैं 20 आवर्स में इसी से काम तो करती हूँ। भागते हैं ना लोग, हाँ, मेहनत है। मेहनत से और भागते हैं। हाँ, और ये बात हमेशा याद रखें, जब आप मेहनत करते हैं ना, ये मेरा पैशन है, मेरा ख्वाब है। और मैं हाँ, हमेशा ये बात कहती हूँ, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जिसके लिए आपको बरसों जागना पड़ता है। फिर आप अपने हाँ। ख्वाब को अचीव करते हैं, अच्छा उनको ये हासिल बताएं करते कि हैं। आपको कितना टाइम लगता है पूरे दिन में काम करते वक्त? मैं जैसे मेरे पास ऑर्डर पे वो होता है, जैसे अगर कोई मेरे पास बड़ा सा आवाज़ आएगा, वो आएगा, तो उसको मुझे 1 दिन लगता है। अगर मैं बैठती नॉन स्टॉप में, एक दिन नॉन स्टॉप नॉन 12 स्टॉप घंटे? 12 घंटे नहीं, नहीं, नहीं 12 मैं 4-5 नहीं घंटे 5 जैसे मैं घंटे नहीं, क्योंकि बैठूँगी। यूजुअली हम काउंट करते हैं ना 8 हाँ, में हाँ। के 4 घंटे 3 जी, जी, घंटे। वो उस पे डिपेंड करता है। ट्रे है, अगर मेरे पास कोई ट्रे हाँ, आई है, तो उस पे मेरा हार्डली 1.5-2 घंटे लगते क्योंकि हैं। एक हाँ, एक वक्त पे तो पूरा टाइम आप नहीं बैठ नहीं बैठ सकते ना, सकती, तो फिर आपको हाँ। थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, ब्रेक थोड़ा चाहिए उठना है, होता वॉक है। नहीं, और करनी है, फिर आपके आना मूड है। होते हैं। अगर मैं किचन में हाँ, चली गई हूँ, मैं किचन में पसीने में, तो फिर मेरा वो आर्टिस्ट कुछ नहीं हो। आपको अपने आप को देखिए, ये अल्लाह ने एक आपके अंदर ना, एक आपके अंदर एक चीज़ होती है, मूड्स होते मूड्स हैं। होते हैं, जो कि जैसे ये चीज़ होती है, तो वो आप ऐसे नहीं होता कि आप किचन से निकलें और आप जाके बैठ जाएँ हाँ, आर्ट का चलो आ बनाने जाओ के जी, लिए। क्या हो गया है, ये हाँ, काम नहीं, हो नहीं, गया, वो नहीं, इट्स अ चीज़ प्रॉपर आपकी वर्क देखिए, हाँ, एक्चुअली। क्योंकि ये खुदादार सलाहियत होती है जो अल्लाह ने आपके अंदर डाली हाँ। हुई होती है ना, और मुझे तो। अच्छा उस हाँ, सलाहियत को इस्तेमाल करते वक़्त भी जब काम कर रहे होते हैं, जी, तो आपको वही मूड चाहिए होते हैं। कहते हैं ना वही एक मूड चाहिए आर्टिस्ट होते हैं, अगर जो है वो उसको खूबसूरत जगह मिल जाए तो मिल उसका जाए। उसका मूड ही अलग हो जाता है फिर। मूल्य मूल्य और मैंने अपने घर का जो पोर्शन है ना, तो हाँ, वो हाँ। मैंने इसको ऐसा बनाया है, जो मेरा टेरेस है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको मैंने बहुत ग्रीन बनाया है, लश ग्रीन बनाया है। और मेरा टेरेस मशहूर भी है इस उससे के हैंगिंग एक गार्डन के तौर पे मशहूर है आपने मेरा। हैंगिंग गार्डन का तो बताएं, वो जी, कैसे जी। आपने वो? हैंगिंग गार्डन का मेरा ये आर्ट है ना, ज़ाहिर है मुझे है कि खूबसूरती होनी चाहिए, तो मुझे ये था कि पौधों से मुझे इश्क था बहुत ज़्यादा, कि मुझे अच्छे लगते थे, ग्रीनरी अच्छी लगती है। नेचर जो है, मेरी सबसे बड़ी टीचर जो है वो नेचर है, कुदरत है, जो उससे हम हैंगिंग सीखती हूँ। गार्डन होती जी। हैं, इसके ऊपर कोई जिस तरह मुझे ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से ना वो ना आए कहीं, कोई ऐसा प्लांट बताएं जिससे वो ना आए बस। चिपकली ना, उसके लिए कुछ टोटके होते हैं ना, कि आप अंडे, बास लोग कहते हैं अंडों के शेल आप रख दें और कुछ ऐसी चीज़ें कर दें। वो वैसे मुझे कोई छिपकलियों से डर नहीं लगता, आपको नहीं तो लगता ना? मैं तो मुझे कहीं नहीं। पे प्लांट रखती हूँ, मैं कहती हूँ खबरदार, मैं कहती हूँ हाँ, खबरदार छिपकली आई तो हाँ, मेरे सबसे थोड़ी बड़ा सी। टॉर्चर है मेरी जिंदगी का। हाँ, नहीं, 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 मुझे कुछ ऐसा वो भी नहीं लगता, डर भी नहीं लगता, लेकिन बहुत खूबसूरत परिंदे आते हैं। अगर छिपकली आती है तो उसके साथ बहुत प्यारे परिंदे परिंदे आते हैं, आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और परिंदों से उसके देखकर साथ भाग भी जाती है वो ना, हाँ, डरती हाँ, है, मार ना हाँ, दे उसको। परिंदे आते हैं, बहुत मतलब खूबसूरत एक आपका एनवायरनमेंट होता है। दूसरी बात ये कि इसके लिए किसी आपको बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती है। आप ब्रश ले लें, थोड़े से पेंट्स ले लें, आप चीज़ें उठा लें, आप मट्टी की चीज़ें तो बहुत सस्ती होती हैं जी हमारी। जी जी। फिर हमारा जो काम होता गमले है, कितने हाँ, सस्ते होते हैं। गमले इतने सस्ते, फिर आपका काम उसको जो है ना वो महंगा बनाता है, उसको वो करता है। हाँ, तो आप ये तो ज़्यादातर चीज़ें कौन से पेंट्स यूज होते हैं इसके ऊपर? एक्रेलिक मैं एक्रेलिक पे काम इसलिए हाँ करती हूँ, हाँ मुझे बहुत इजी मीडियम लगता है ये, इसलिए हाँ, लगता है कि ये इसके वाटर बेस है, और जल्दी वाटर ड्राई हो बेस जाता है। है, नहीं वो ख़राब नहीं होता। और सारी चीज़ें मेरी देखें, अब जैसे अभी मेरा अमेरिका के एक ऑर्डर आया हुआ था, ट्रे का था, और जो मैंने वो मिट्टी के वो बॉल्स बनाए, तो उसका ये है कि अगर आप धोएंगे, वॉशेबल होते हैं वो ज़ाहिर है, लेकिन आपको ये ओके। चीज़ें
एहतियात से, ऐसे नहीं कि आपने डिश वॉशर में डाल दिया, अब मासियाँ उसको रगड़ रही हैं, वो कर रही हैं, तो ये खूबसूरती है ना चीज़ें। हाँ, अपनी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको जी, आपको बहुत संभाल के रखना बहुत संभाल पड़ता है। के रखना पड़ता है जी। हाँ, तो तो मेरा, एक आप महंगा चीज़ ले रहे हैं, एक आपकी जी, ब्यूटी है, हाँ, इट्स एन आर्ट वर्क एक्चुअली, एक आर्ट वर्क तो है व्हाई ज़ाहिर है नॉट। आपका। हाँ, 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 तो फिर हाँ। इसको मैंने नेचर से रिलेट कर दिया ना, कि जैसे मैं अब खूबसूरत गमले बना के उसमें मैं हाँ, अपने पौधों को लगा लेती उसमें हूँ। फिर हैंगिंग भी बन हैंगिंग फिर जाते मेरी हैं। बहुत सारी, अच्छा मैंने पौधे वो रखे हुए हैं कि कराची का जो हमारा मौसम है, जो हमारा, उसको ज़हन में रखते हुए, क्योंकि हमारा बहुत सीवियर मौसम आ जाता है, जो जी, जी, हमारा जी, जी। समर आते हैं, तो मैंने प्लांट्स ऐसे रखे, पानी का प्रॉब्लम भी है, कि प्लांट्स ऐसे रखें जिसमें ज़्यादा पानी की अच्छा, बहुत ज़रूरत नहीं कौन-कौन से होता है। ऐसे प्लांट्स हैं जो रख सकते हैं जिनमें पानी का प्रॉब्लम ना हो और जो जले सकुलेंट्स नहीं? आप रखें। सकुलेंट्स का ये होता है कि उनके जो लीव्स होते हैं वो पानी किनका? को कैरी, सकुलेंट्स होते हैं, ओके, एक पौधे होते हैं जिसके लीव्स पानी को कैरी करते हैं। ओके। तो वो उसमें ये कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आप उसको एक हफ्ता भी, कुछ मेरी लटकने वाली बेलें ऐसी हैं, जेड प्लांट है जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अलावा और बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो कि पानी की कम ज़रूरत होती है, उनको बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ज़रूरत नहीं पड़ती उनको हाँ, पानी तो की, वो क्योंकि उसको, हैंगिंग भी हाँ, होता है ना, बार-बार ऊपर चढ़ के भी वो देना नहीं, वो पड़ता मैंने है। बास्केट्स रखी हैं और वो उसकी बनी हुई हैं, और रिसाइकलिंग को भी मैं अपने के साथ डालती हूँ, क्योंकि जैसे मेरे बैग्स ख़राब हो जाते हैं, शूज़ ख़राब हो जाते हैं, तो उन बैग्स में मैं डाल के ना उसको फर्टिलाइज़र डाल के फिर उसमें पौधे लगा लेती हूँ, उस पे थोड़ा सा आर्ट वर्क कर लेती हूँ, तो वो भी बड़ा खूबसूरत एक चीज़ लगती एक है। नई चीज़ होती है, बैम्बू को कटवा हाँ। के फिर बैम्बू के मैंने वो बनाए, मैं उसके अंदर मैंने डाल के, मतलब वो चीज़ों को मैं रिसाइकिल भी करती हूँ। मुझे होता है कि आप जब नेचर के से पे काम करें तो फिर आप इन चीज़ों को भी करें, ज़ाया ना करें, उन चीज़ों को आप रिसाइकिल भी करें, बहुत-बहुत मतलब। शुक्रिया हाँ, आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बहुत इसके शुक्रिया। साथ ही नाज़रीन जाएँगे ब्रेक के, जाने ब्रेक, अब फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।